عشق کے قید خانے میں ان مجاہدین اسلام کی داستان جنہوں نے اندلس کے ساحل پر اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے جولین کو رخصت کر کے کاتب کو بلایا اور خلیفہ کے نام ایک طویل پیغام لکھوایا۔ جولین کی رام کہانی تفصیل سے لکھوائی۔ اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا، جو صحیح معنوں میں مرد مومن تھا۔ اسلام کو سمندر پار پہنچانے کے جذبے سے وہ سرشار تھا۔ انہی دنوں محمد بن قاسم کو ولید بن عبد الملک نے ہی ہندوستان بھیجا تھا۔ حجاج بن یوسف اس کا دست راز تھا۔ موسیٰ نے جولین کی تمام باتیں لکھ کر خلیفہ کو لکھ دیا۔ یہ تو ایک اتفاق ہے کہ جولین ایک تناور درخت سے کٹے ہوئے ٹہن کی مانی تمہاری جولی میں آ گرا ہے۔ میں اپنی بات ان الفاظ میں پیش کرتا ہوں کہ ایک عرصے سے میری یہ نظریں اندلس کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اسلام کا پیغام مصر اور افریقہ کے ساحل پر آ کر رک گیا ہے۔ میں نے کئی بار تنبہ کے ساحل پر کھڑے ہو کر اندلس کی طرف دیکھا ہے اور سمندر کا سینہ چیر کر اندلس پر حملہ کرنے کے منصوبے بنائے ہیں۔ اب ایک عیسائی حکمران نے تعاون کی پیشکش کی ہے تو ہر پہلو پر غور کر کے مجھے اندلس کی طرف پیش قدمی کی اجازت دیں۔ ایک اور پہلو پر غور کریں، میرے پاس جو فوج ہے وہ تقریباً تمام کی تمام بربر ہے۔ بربر وحشی اور خونخوار قوم ہے۔ ان کی فوج کو میں نے نظم و نسق کا پابند بنا دیا ہے، لیکن یہ چین سے بیٹھنے والے لوگ نہیں۔ جنگ و جدل ان کا فطری تقاضا ہے۔ سرکشی پر یہ مادہ اور تیار رہتے ہیں۔ انہیں زیادہ عرصہ تک نظم و نسق اور قواعد و ضوابط کی لگام نہیں ڈالی جا سکتی۔ انہیں کچھ عرصہ اور اسی طرح فارغ اور پابند رکھا گیا تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے یا قواعد و ضوابط سے باغی ہو جائیں گے، اور یہ اسلام سے بھی باغی ہو سکتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین میں انہیں سویستا پر حملہ محاصروں وغیرہ میں مصروف رکھتا رہوں گا، لیکن کچھ عرصے سے یہ سلسلہ بھی بند ہے۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس بربر فوج کو کوئی میدان جنگ دیا جائے تاکہ یہ دشمن کا اور اپنا خون بہانے کا نشہ پورا کر لیں۔ اس نشے کے علاوہ ایک وجہ اور بھی ہے، انہیں مومن اور مجاہد بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اندلس کا رخ کیا جائے تاکہ یہ لوگ کفرستان میں جا کر فتح حاصل کریں اور اسلام کو فروغ دیں۔ اس طرح اسلام ان کی رگ و ریشے میں اتر جائے گا۔ قاصد بہت دنوں بعد خلیفہ ولید عبد الملک کا جواب لے کر آ گیا۔ جواب حوصلہ افزا تھا، البتہ خلیفہ نے زور دے کر لکھا تھا کہ احتیاط لازمی ہے۔ جو لوگ دین اسلام سے باہر ہیں ان پر مکمل طور پر بھروسہ اور اعتماد کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ خلیفہ نے احتیاط کے سلسلے میں لکھا کہ جولین کو کسی طرح آزما لیا جائے۔ اگر والی سویستا جولین آزمائش پر پورا اترے تو دمشق کی اطلاع دی جائے۔ یہاں سے کمک اور دیگر ضروری سامان جلدی بیچ دیا جائے گا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کا جواب اپنی مشاورتی مجلس کو پڑھ کر سنایا اور سب سے مشورہ طلب کیا۔ عربوں کی ذہانت مشہور ہوا کرتی تھی۔ مجلس نے کچھ ہی دیر غور و خوض اور تبادلہ خیالات و تجاوز کے بعد جولین کو آزمانے کا طریقہ سوچ لیا۔ ایک ایلچی کو سویستا روانہ کر دیا کہ جولین کو یہاں آنے کا پیغام دے آئے۔ جولین تو جیسے سی پیغام کا منتظر تھا، وہ پیغام ملتے ہی اجلت میں تیار ہوا۔ اس نے وٹیزا کے بھائی اور اوپاس کو بھی، جو سویستا میں رہتا تھا، ساتھ لے لیا۔ اس کے ساتھ فوج کا ایک اعلیٰ افسر اور 100 سواروں کا حفاظتی دستہ تھا۔ یہ شاہی قافلہ مسافت طے کر کے موسیٰ کے دارالحکومت کے ران پہنچا تو جولین بغیر آرام کیے موسیٰ سے ملا۔ تاریخوں کے مطابق اس ملاقات میں وٹیزا کا بھائی اوپاس اور جولین کی فوج کا افسر اعلیٰ بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہ ایک تاریخی ملاقات تھی۔ اسی ملاقات میں مسلمانوں پر اندلس کے دروازے کھلے تھے۔ میرے بھائی جولین، موسیٰ بن نصیر نے کہا، دمشق سے اجازت آ گئی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ثابت کرو کہ اندلس کے بادشاہ راڈرک کو تم ایسا دشمن سمجھنے لگے ہو کہ حالات کیسا ہی پلٹا کیوں نہ کھا جائیں، تم اس کے ساتھ دوستی بحال نہیں کرو گے۔ یہ ثبوت پیش کرنے کا کوئی طریقہ تم ہی بتاؤ۔ جولین نے کہا، میں تو لمحے گن رہا ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا جب میں اس بدکار راڈرک سے اپنی بے عزتی کا انتقام لوں گا۔ امیر محترم اوپاس نے کہا، میرے اس بھائی کی روح مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی، جس کے خلاف راڈرک نے بغاوت کرائی اور اس کی بادشاہی کا تختہ الٹ کر خود بادشاہ بن گیا۔ میرے بھائی وٹیزا کو قتل کرا دیا۔ اب اس نے ہمارے خاندان پر ایک اور اوچھا وار کیا ہے۔ اگر آپ ہماری جگہ ہوتے تو انتقام لینے کے لیے ایک دن کا انتظار بھی گوارا نہ کرتے۔ اگر آپ جتنی فوج ہمارے پاس ہوتی تو ہم مدد کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پر نہ آتے۔ اب انتظار نہیں کرواؤں گا۔ موسیٰ نے کہا، جولین ایک کام کرو، رات کے اندھیرے میں سمندر پار کرو، تمہاری فوج تمہارے ساتھ ہو، اندلس کے کسی ساحلی علاقے پر حملہ کرو۔ اس سے پہلے کہ اندلس کی فوج آئے تم اپنی فوج کو واپس لے آؤ، اور یہ ایک ثبوت ہوگا کہ تم شاہ راڈرک کو اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ میں تمہارے جذبہ انتقام کی شدت کا اندازہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میری فوج وہاں کسی وجہ سے پھنس گئی، جولین نے کہا، اور اگر میری فوج کا مقابلہ زیادہ فوج سے ہو گیا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ تمہیں برے انجام تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میرے دستے ساحل پر موجود ہوں گے۔ میں پیغام رسانی کا ایسا انتظام کروں گا کہ تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو مجھے فوراً اطلاع مل جائے گی اور میرے دستے تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔
जोलीन और ओपास ने फौरन रजामंदी का इजहार कर दिया और मूसा के साथ मिलकर इन्होंने अंदलस के एक साहली इलाके पर हमला करने का प्लान बना लिया। वो दोनों इसी वक्त सवेस्ता को रवाना हो गए। मूसा बिन नसीर ने कुछ दस्ते अपनी फौज सलार अबू ज़रोवा ज़रीफ़ बिन मालिक अल मारिफी की ज़ेर कमान इस हुक्म के साथ भेज दिए कि सवेस्ता के मज़ाफ़ात में जाकर खेमा तन हो जाएं, और जब जोलीन अपने दस्ते अंदलस की तरफ भेजे तो तरीफ अपने दस्तों की तैयारी की हालत में सवेस्ता के साहल पर ले जाए। जब सलार तरीफ अपने दस्तों के साथ सवेस्ता के करीब पहुंचा तो जोलीन ने बाहर आकर इसका शाहाना इस्तकबाल किया और तारीफ से कहा वो किले के अंदर इसके महल के एक कमरे में क़याम करे। काउंट जोलीन, सलार तरीफ ने कहा, हमारे हाँ सलार अपने आप को अपने लश्कर के किसी एक सिपाही से भी बुलंदो बरतर नहीं समझा कि इससे अलग रहे। मैदान जंग में सलार और सिपाही एक होते हैं। हमारा मज़हब बरतरी और कमतरी को तस्लीम नहीं करता। आप हमें नमाज पढ़ते देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सफ़ो दर सफ़ खड़े इन मुसलमानों में अहदेदार कौन और सिपाही कौन है। ऐसे भी होते हैं कि हमारे मुलाजिम अगली सफ़ में होते हैं और हम पिछली सफ़ों में। सलार की ये सादत हासिल है कि इमामत के फ़राइज़ वो अदा करता है। आप अंदरस को फ़तह कर लेंगे। जोली ने पुरजोश लहजे में कहा, यही इस्लाम की ताकत है जो आपने बयान कर दी है। हमारे सलार सिपाहियों को अपने ज़ाती मुलाजिम समझते हैं, फिर भी मेरे महल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। फिर वो रात आई जब जोलीन की फ़ौज सवेस्ता के साहल पर बादबानी कश्तियों में सवार हो रही थी और सलार तारीफ के दस्ते तैयार होकर साहल पर पहुंच गए थे। समुद्री मुसाफिर सिर्फ 12 मील थी। जोलीन की जंगी कश्तियों के मला तजर्बाकार थे। समुद्र पुरसकून था, हवा तेज थी और मवाकिफ भी। लाहौर ने मतवक्का वक़्त से पहले जोलीन की फ़ौज को अंदलस के साहल पर पहुंचा दिया। कुमान अब्बास के हाथ में थी। जोलीन साहिल पर खड़ा था। इसके साथ उसकी बीवी और दोनों बेटियां फ्लोडा और मैरी खड़ी थी। फ़ौज की रवानगी तब फ्लोडा ने बाप के लिए एक मसला खड़ा किए रखा। वो जिद कर रही थी कि मर्दाना कपड़े पहनकर अपनी फ़ौज के साथ अंदलस जाएगी। उसने बाप का जंगी लिबास निकाल लिया था, डाल और तलवार भी तैयार कर ली थी, लेकिन जोलीन उसे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। माँ भी उसे रोक रही थी। क्या मैं शहसवार नहीं? फ्लोडा चीख चलाकर कहती रही। क्या मैं पर्ची और तलवार नहीं चला सकती? क्या मेरी कमान से निकले हुए तीर हवा में ज़ाया हो जाते हैं? माँ और बाप उसे बता रहे थे वो सब कुछ जानती है, लेकिन जब दुश्मन बर्छी और तलवार लेकर मैदान में आता है तो अपनी बर्छी और तलवार संभल कर और देख कर चलानी मुश्किल हो जाती है, और कमान से निकले हुए तीर हवा में ज़ाया होने लगते हैं। लड़ना और मरना मर्दों का काम है। बेआबरू मैं हुई हूँ, फ्लोडा ने कहा था। उलस पर पहले इंतकामी ज़रब मैं तो मुझे शामिल होने दो। बाप ने उसे इस वादे पर रोक लिया, जब मुसलमान हमला करके शहरार को शिकस्त देने तो वो मूसा बिन नसीर से कहेगा कि राडर को जिंदा पकड़कर उसके हवाले कर दिया जाए, जब फिर फ्लोडा उसे अपने हाथों कत्ल कर सकती है। फ्लोडा मुतमिन हो गई थी। अपनी फ़ौज को अलविदा कहने अपने बाप के साथ साहिल तक गई। वहाँ उसे मुसलमान सलार अबू ज़रवा ज़रीफ़ नज़र आ गया। बाप ने इस सलार के साथ उसका तारुफ कराया तो फ्लोडा ज़रीफ़ के पीछे पड़ गई कि वो उसे उसके बाप से इजाज़त ले दे कि वो अपनी फ़ौज के साथ चली जाए। तुम्हारा बाप शायद तुम्हें इजाज़त दे दे, सार तारीफ ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। हम औरतों की इज़्ज़त और आबरू पर जाने देने वाले औरतों को दुश्मन के सामने मैदान में कैसे भेज दें। आधी रात के बाद मस्कत के जनूबी साहल के एक कस्बे में मैदान स्पानों के लोग गहरी नींद सोए हुए थे। साहल के साथ फौजी चौकियां भी थीं जिनमें फौजी मौजूद थे जो कभी के सो गए थे। जिन संतरियों को जागते रहना था वो कहीं खड़े कहीं बैठे ऊँग रहे थे। उन्हें कोई खतरा नहीं था। वो जानते थे कि सवेस्ता अंदलस का दरवाज़ा है और इस दरवाजे पर बड़ा मजबूत किला और जोलीन की फौज मौजूद है। खतरा मुसलमानों का ही हो सकता है। वो सवेस्ता का रास्ता छोड़कर किसी दूर के साहली मुकाम से आ सकते थे, लेकिन अरबों के मुतालिक मशहूर था कि वह जहाज रानी से वाकिफ़ नहीं और समुद्री लड़ाई लड़ने का भी उन्हें तजर्बा नहीं। ये थी भी हकीकत। वो इस्लाम का इब्तदाई दौर था। साल हिजरी अरबों को अभी समुद्री लड़ाई का मौका नहीं मिला था। उनलस के साहली फौज बेफिक्र थी। जोलीन की कश्तियाँ मैदान स्पानों से ज़रा दूर रुकीं। फौज हुक्म के मुताबिक खामोशी से कश्तियों से उतरी। इसका कमांडर पास जानता था कि फौज चौकियाँ कहाँ कहाँ हैं। उसने अपने दस्तों को इन चौकियों पर हमला के लिए तकसीम कर दिया और तेज़ रफ्तार हमले का हुक्म दे दिया। संतरियों ने अपनी तरफ साए से बढ़ते देखे, लेकिन ये मालूम होने से पहले कि ये कौन आ रहे हैं उन पर क़यामत टूट पड़ी। चौकियों में सोए हुए फौजियों को उठने की मोहलत ही ना मिली और वो मारे गए। चौकियाँ दूर दूर फैली हुई थी। सुबह तुलू होने से पहले पहले इनका सफाया कर दिया गया। उनमें से कोई एक भी न भाग सका जो किसी बड़े शहर तक पहुंचकर इतला दे सकता कि किसी फौज ने हमला कर दिया है। सुबह तुलू होते ही जोलीन की फौज दो तीन कस्बों में दाखिल हो गई। हुक्म के मुताबिक फौज ने लूट मार शुरू कर दी। जोलीन ने हुक्म दिया कि कोई गिरजाघर खड़ा न रहे दिया जाए। इसके फौजियों ने बाद गिरजों को गाज लगा दी और बाद गिरजे गिरा दिए। शाम तक सविस्ता की फौज ने लूट मार का बाजार गर्म रखा। कोई खूबसूरत और जवान लड़की नजर आई तो उसे भी उठा लिया, और जिस तरह यह फौज बड़ी शीशियों में आई थी उसी तरह कश्तियों में सवार होकर वापस सविस्ता चली गई।
जोली ने यह भी हुक्म दिया कि ये ऐलान किया जाए कि ये सवस्ता की फ़ौज है, चनाजा इसकी फ़ौज लूट मार के दौरान ये ऐलान करते रहे। जब फ़ौज वापस आई तो जलील ने मूसा बिन नसीर के खिलाफ तारीफ से पूछा कि उसे यकीन आया है या नहीं, वो रडक को अपना दुश्मन समझता है। आप सलार हैं? जलील ने तारीफ से कहा, क्या मैंने अपने लिए खतरा पैदा नहीं कर लिया कि रडक को व्यवस्था पर जवाबी हमला करेगा? उसे हमला करना चाहिए। सलार तारीफ ने कहा, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका बाइकदार उसके मुल्क में आकर उसकी फ़ौज का कत्लेआम और शहरियों के घरों का सफाया कर जाए। लेकिन काउंट जलील, हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। मेरे ये दस्ते यहीं रहेंगे और साहिल पर हर वक्त चौकस रहेंगे। आप फौरी तौर पर हमारे अमीर मूसा बिन नसीर के पास जाएं और दोस्ती का बाकायदा माहिदा कर लें। फिर इसकी इत्तला शाह की तरफ पहुंचा दें। दोस्ती का माहिदा हो गया। मूसा को यकीन तो आ गया था कि जोलीन धोखा नहीं दे रहा, लेकिन वो इस यकीन को मुकम्मल तौर पर पुख्ता करना चाहता था। उसने ये तरीका अख्तियार किया कि उंदलस के शहर से कुछ दूर एक जदीद एक सी रास का इंतखाब किया और उस पर हमले का प्लान बनाया। इसमें इसने अपनी फ़ौज के साथ जोलीन की फ़ौज को भी शामिल कर लिया। इस मुश्तरका फ़ौज के हमले से मूसा को एक तो ये देखना था कि जोलीन और उसकी फ़ौज किस हद तक काबिल एतमाद है, और ये जायजा भी लेना था कि उंदलस की फ़ौज लड़ने में कैसी है, उसके कमांडर फ़न हर्ब व ज़र्ब में कैसे हैं। मूसा ने इस मुश्तरका फ़ौज की कमान सलार अबू तरीफ बिन मालिक अल-मआफ़री को दी। इब्न मालिक मूसा ने सलार तरीफ को आखिरी हदायत देकर कहा, खुद भी देखना और अपने नायबीन को भी कह देना कि जोलीन की फ़ौज के कमांडरों को देखते रहें कि हमें धोखा तो नहीं दे रहे। ये भी देखना है कि ये लड़ने में जुर्रतमंद हैं या बुज़दिल। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जोलीन अपनी फ़ौज के कमांडरों से कह रहा था, मुसलमानों को ये कहने का मौका ना देना कि जोलीन की फ़ौज बुज़दिल है, और कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे मुसलमानों को ये शक हो कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। मुसलमानों के अमीर को भी हम पर एतबार नहीं आया। याद रखो, अपनी आन पर जाने कुर्बान कर देने वाले बहादुर धोखा नहीं दिया करते। तुम एक धोखाबाज इंतकाम लेने जा रहे हो। वो धोखाबाज उंदरस का बादशाह राडरक है। तुम्हें पहले बताया जा चुका है कि राडरक हमारा दुश्मन है। तुम इस पर एक वार कर चुके हो। मैं एक ही बात पर जोर दूंगा कि मुसलमानों को ये तसर ना देना कि तुम बुज़दिल और धोखेबाज हो। वो जुलाई 710 ईस्वी की एक रात से जन्म लेने वाली एक शहर थी, जिसकी तारीख में मूसा बिन नसीर और जलीन की फ़ौज बड़ी जंगी कश्तियों में सवार हुई। किसी भी तारीख में जोलीन की फ़ौज की तादाद नहीं लिखी। मुसलमानों की फ़ौज की तादाद 400 प्यादे और 100 घुड़सवार थे। ये गिसिरास बहुत बड़ा जजीरा था ही था, और ये बहुत छोटा भी नहीं था। जासूसों के ज़रिए पहले मालूम करा लिया गया था कि वहीं उधरस की कितनी फ़ौज और कहाँ कहाँ से कश्तियाँ से किनारे पर रोकी गई हैं, जहाँ दरख्तों हरियाली से लगी हुई बुलंद टिकरियाँ थी। उधर से जजीरे की फ़ौज को नज़र नहीं आ सकता था कि कोई फ़ौज उतर रही है, लेकिन सलार तरीफ और जलील के दस्ते अपने आप को दुश्मन से छुपा ना सके। ये कश्तियाँ जब खुले समुद्र में जजीरे की तरफ जा रही थी तो जजीरे के लोगों को दूर से नजर आ रही थी। कश्तियाँ किनारे लगी, उनमें से घोड़ों को उतारा गया। पैदल फौज भी उतरी। सवार अभी घोड़ों पर सवार नहीं हुए थे और प्यादे अभी पेशकदमी की तरतीब में नहीं आए थे कि टेकरियों से उन पर तीनों की बौछार आने लगी। तीरंदाज दरख्तों के पीछे घने दरख्तों की शाखों और पत्तों में हरी भरी झाड़ियों में छुपे हुए थे। उधर के एक साहली इलाके पर जोलीन की फौज एक हमला कर चुकी थी, इसलिए साहली इलाकों और जजीरों में फौज चुकनी और तैयार रहने लगी थी। सलार तरीफ ने घोड़ों सवारों को जो तीरों से बचने के लिए बिखर गए थे हुक्म दिया कि घुड़सवार टेकरियों को घेरे में ले लें, लेकिन तीरों की रद से दूर रहें। प्यादे पहले इधर उधर हो गए थे। ज़्यादा तादाद पीछे समुद्र में चली गई। बाद कश्तियों में जा छुपे। सामने सिर्फ जख्मी रह गए। जलीन के दस्तों का कमांडर वो पास था। उसने भाग दौड़ कर अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया और उन्हें हुक्म दिया कि टेकरियों की तरफ से अकब से ऊपर जाएं। सिपाही दौड़ पड़े। तीरंदाज सामने यानी समुद्र की तरफ तीर बरसा रहे थे और पास के सिपाही दाएं बाएं और पीछे से टिकरियों पर दरख्तों झाड़ियों और घास की ओर में जाने लगे तो तीरंदाजों के रुख बदल गए, लेकिन रुख तकसीम हो गए। पास अपने सिपाहियों को ललकार रहा था। अपने सिपाहियों बड़ी जुर्रत से तीरों के सामने ऊपर चढ़ रहते जा रहे थे। सलार तरीफ ने पास के सिपाहियों की ये बेखौनी ही देखी तो उसने अपने दस्ते के तीरंदाजों से कहा कि वो टेकरियों के नीचे जो दरख्त हैं उन पर चढ़ जाएं और दुश्मन के तीरंदाजों को निशाना बनाएं। मुसलमान तीरंदाज दरख्तों पर चढ़ने लगे तो चंद एक दुश्मन के तीरों से जख्मी होकर गिरे। बाकी तीरंदाज रस्तों पर जाकर टेकरियों पर तीर फेंकने लगे। जजीरे के तीरंदाज भागने लगे, लेकिन टेकरियों सवारों के नरगे में थी। इनमें कोई भी जिंदा ना भाग सका। जजीरे के बाकी फौज हमलावरों के मुकाबले के लिए तैयार थी। सलार तरीफ ने अपनी घुड़सवारों को टेकरियों के पीछे छुपाकर उनके कमांडरों को एक इशारा बताया और कुछ हदायत दी। दोनों फौजों का तसादुम हुआ। दलस की फौज जल्दी मुंह मोड़ने लगी। सलार तारीफ ने अपने छुपे हुए सवारों को इशारा दे दिया। सवार बहुत तेजी से टेकरियों के पीछे से निकले और सर पर दौड़े दुराते दुश्मन की अकब में चले गए। दुश्मन के लिए ये चाल गैर मतवक्का थी। सवारों ने अकब से हमला कर दिया और जजीरे की फौज का कत्लेआम होने लगा। मार्का जल्दी ख़त्म हो गया। जजीरे का नाम बदलकर जजीरातुल अलखिज़र रख दिया गया।